Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss section 102, section 102, which is dealing with the chapter of right of private defense, in which we will discuss when the right of private defense available against a body. Suppose if some person attacks on the body of a person, then in what manner he is entitled to take the right of प्राइवेट डिफेंस. कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसको अवेलेबल रहेगा? बॉडी के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कॉजिंग अप टू कॉजिंग डेथ कब अवेलेबल रहेगा? मतलब अगर किसी ने अटैक किया तो उसकी डेथ कॉज कब कर सकते हैं, या ग्रीवियस हर्ट कब कर सकते हैं, या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस कब होगा और कब तक चलेगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Right of private defense part 2nd, section 102, 102. So section 100, when the right of private defense of the body extends to causing death. So we will discuss under this particular lecture that when the person is having a right to exercise a right of private defense up to causing the death of any person. कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई पर्सन किसी की जान ले सकता है? द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द असाइलेंट if the offense which occasioned the exercise of the right to be of any of the description hereinafter enumerated namely. तो सेक्शन 100 में ये प्रोविजन बताए हुए हैं कि कब कोई पर्सन अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी की जान ले सकता है. यहाँ पर ये बताया हुआ है कि जो रेस्ट्रिक्शन 99 में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए वो रेस्ट्रिक्शन लागू रहेंगे. वो रेस्ट्रिक्शन के अलावा कब कोई पर्सन अपना राइट of private defense up to causing death exercise कर सकता है. The first one is assault causing apprehension of death. So when the person is having a right to use a right of private defense up to causing his death, whenever there is assault causing apprehension of death. Suppose if someone else attacks on me and if there is apprehension in my mind that my death may occur, under such a circumstances I can use my right of private defense up to causing his death. अगर मुझ पे कोई अटैक करता है और मुझे ऐसा डर लगे कि ये अटैक जो इसने किया वो मेरी जान भी ले सकता है, apprehension of death is there, मुझे डर लगा कि वो मेरी जान जा सकती है उस अटैक में, तो मैं उसकी जान ले सकता हूँ. I can use a right of private defense up to causing his death. Then secondly, assault causing apprehension of grievous hurt. Suppose if there is a apprehension in my mind that due to the attack of someone else I may cause the grievous hurt, कि मुझे grievous hurt हो सकता है, उस सिचुएशन में भी I am having a right as per provision of section 100 to use a right of private defense up to causing the death of that assailant. अगर कोई पर्सन मेरे ऊपर हमला करता है और वो हमले में मुझे ऐसा डर है कि मुझे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, उस सिचुएशन में भी प्रोविजन है मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता हूं. और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए अगर उसकी जान भी चली जाती है तो आई एम एंटाइटल्ड टू टेक द डिफेंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस. मैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस ले सकता हूं. थर्ड वन इज असॉल्ट विथ इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप. इफ अक्यूज्ड असॉल्ट if accused attacks on some woman for the purpose of causing the offense of rape, committing the offense of rape, then such woman is having a right to use a right of private defense up to causing the death of that accused person. अगर कोई accused किसी woman पर हमला करता है रेप करने के इरादे से, offense of rape करने के इरादे से, उस सिचुएशन में वो वुमन को पूरा अधिकार है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में
असाइलेंट की, वो अटैकर की, वो अक्यूज्ड की जान भी ले सकती है। देन फोर्थली, असॉल्ट विथ इंटेंशन टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट। इफ एनी पर्सन अटैक्स ऑन समवन एल्स फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, अगर जो उसके अननेचुरल लस्ट है, वासना के चलते अगर वो कोई अटैक करता है फॉर द पर्पस ऑफ ग्रेटिफाइंग हिज अननेचुरल लस्ट, उस सिचुएशन में भी जिस किसी पे भी अटैक हुआ वो जान ले सकता है, उसकी डेथ कॉज कर सकता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। फिफ्थली, असॉल्ट विथ इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग। इफ एनी अक्यूज्ड पर्सन अटैक्ड ऑन अदर फॉर द पर्पस ऑफ किडनैपिंग और अबडक्टिंग द पर्सन, अगर कोई किडनैपिंग के इरादे से या अबडक्शन के इरादे से किसी पे अटैक करता है, उस सिचुएशन में वो पर्सन जिसको किडनैप किया जाना है या जिस पर अटैक हुआ है, वो पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में असाइलेंट की, जिसने अटैक किया, उसकी जान भी ले सकता है। सेक्शन 100 उसको ये राइट प्रोवाइड करता है। ही इज इंटाइटल्ड टू कॉज हिज डेथ, वो डेथ भी कॉज कर सकता है किडनैपिंग और अबडक्शन के इरादे से अगर अटैक होता है तो। नेक्स्ट वन इज सिक्सथली, असॉल्ट विथ इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन। अगर किसी पे अटैक होता है, किस लिए? रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को रॉन्गफुली बंदी बनाने के इरादे से। अगर मुझ पे किसी ने अटैक किया और अटैक इस इरादे से किया कि मुझे कहीं ना कहीं बंदी बनाने का है उनको, उस सिचुएशन में मैं खुद को बचाने के लिए उसकी जान ले सकता हूं, अटैकर की। सो आई एम हैविंग अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अप टू कॉजिंग हिज डेथ। सो दैट इज द सिक्स्थ सर्कमस्टांसेस। तो ये जो 6 सर्कमस्टांसेस थे, ये 6 तरीके के अटैक अगर किसी पर्सन पे होते हैं तो वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में असाइलेंट की, अटैकर की जान भी ले सकता है एंड देयर विल बी नो ऑफेंस, और वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा बिकॉज सेक्शन 100 प्रोवाइड्स सच अ राइट टू द पर्सन। अब सेक्शन 100 पे पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में, और वो क्वेश्चन है द अक्यूज्ड स्टैब्ड अ मैन हु वाज सेक्सुअली असॉल्टिंग हर एंड शी कॉज्ड हिज डेथ, शी इज। अब जो अक्यूज्ड है, जो लेडी है, उसने चाकू भोंक कर उसकी हत्या कर दी उस पर्सन की जिसने सेक्सुअली असॉल्ट किया था उस वुमन पे। तो अब शी इज, अब उसकी क्या लायबिलिटी रहेगी? गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, गिल्टी ऑफ मर्डर, गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, गिल्टी ऑफ कॉजिंग डेथ बाय रैश एक्ट। अभी देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि अगर रेप के इरादे से सेक्सुअल असॉल्ट अगर होता है, उस सिचुएशन में वो लेडी को पूरा अधिकार है, वो असाइलेंट की जान भी ले सकती है, और यहां पर ये क्वेश्चन में उसने ऐसा ही किया। तो हमने देखा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर कोई एक्ट करता है तो देयर इज नो ऑफेंस। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर बताया हुआ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू द वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ। तो थर्ड एक्सप्लेनेशन है एन असॉल्ट विथ इंटेंशन टू कमिट रेप, उस सिचुएशन में वो ऑफेंस नहीं रहेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो शी विल बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस, वो कोई ऑफेंस के लिए गिल्टी लायबल नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू कॉज डेथ ऑफ ऑफेंडर इन विच ऑफ द फॉलोइंग? रेप, किडनैपिंग, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कॉजिंग मिसकैरेज। देखो क्वेश्चन क्या है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, कि कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी की डेथ लेने के लिए नहीं रहेगा, कब कोई पर्सन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में किसी की जान नहीं ले सकता, ये क्वेश्चन है। तो रेप में ले सकता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। किडनैपिंग में ले सकता है, मतलब थर्ड जो एक्सप्लेनेशन है उसमें अगर कोई रेप के इरादे से अटैक करता है तो उसकी जान ले सकते हैं। असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लिस्ट, जान ले सकते हैं। असॉल्ट विद इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन, किडनैपिंग के इरादे से अगर अटैक होता है, असॉल्ट होता है, तब भी जान ली जा सकती है। तो सिर्फ एक चीज है, कॉजिंग मिसकैरेज। अगर मिसकैरेज के इरादे से अगर अटैक होता है तो उस सिचुएशन में डेथ कॉज नहीं कर सकते। तो दैट इज आंसर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। 2016 में उत्तर प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है अंडर इंडियन पिनल कोड 1860 सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन लेट डाउन अंडर सेक्शन 99 in cases of assault causing reasonable apprehension of death or grievous hurt, the right of private defense extend to the voluntarily causing of grievous hurt, death, any harm other than death, any harm other than death or grievous hurt। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस
ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ, वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ है, तो इस सिचुएशन में हम देखें तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो जब कोई भी अगर जान लेने के इरादे से अटैक करता है या ग्रीवियस हर्ट करने के इरादे से अटैक करता है, उस सिचुएशन में पर्सन अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने वाले की डेथ भी कॉज कर सकता है। तो बी, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। सेक्शन 101, when such right extend to causing any harm other than death। अब जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डेथ के अलावा किसी को हार्म करने का, इंजोर करने का कब रहेगा, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 101। इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन इन्यूमरेटेड इन द लिस्ट प्रीसीडिंग सेक्शन, जो पिछले सेक्शन 100 में जो बताया हुआ था कि कौन से ऑफेंस के लिए किसी की जान भी ली जा सकती है, अगर उसके अलावा अगर कोई ऑफेंस होता है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरीली कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असाइलेंट। वो जो 6 सिचुएशन हमने सेक्शन 100 में देखे, उसके अलावा अगर अटैक होता है तो अटैकर की जान नहीं ली जा सकती है, बट डज एक्सटेंड अंडर द रेस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99 टू द वॉलंटरीली कॉजिंग टू द असाइलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। तो उस सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज करके हम उसको दूसरा कोई इंजरी पहुंचा सकते हैं, ना कि उसकी डेथ कॉज कर सकते। डेथ कॉज कब कर सकते हैं? जो 6 एग्जांपल हमने देखे कि जान लेने के इरादे से किसी पे अटैक हुआ, ग्रीवियस हर्ट करने के इरादे से अटैक हुआ, रेप करने के इरादे से अटैक हुआ, ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट के हिसाब से हुआ, अबडक्शन किडनैपिंग के हिसाब से हुआ, तो ही सामने वाले अटैकर की डेथ ली जा सकती है, डेथ कॉज की जा सकती है। इसके अलावा डेथ कॉज नहीं की जा सकती है, बल्कि उसको इंजोर किया जा सकता है। एनी अदर हार्म इज परमिसेबल while exercising right of private defense। तो हम पर किसी ने अटैक किया, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तो हम कर सकते हैं यूज, बट उसकी डेथ कॉज नहीं कर सकते, सेक्शन 101 ये कहता है। सो सेक्शन 102, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जब बॉडी का है, वो राइट कमेंस कहां से शुरू होगा और उसका कंटिन्यूएंस कहां तक रहेगा। सो राइट कमेंसेस as soon as reasonable apprehension of danger to body arises and continues till the apprehension continues। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहां से शुरू होगा और कब तक रहेगा, ये सेक्शन 102 में बताया हुआ है। So whenever the apprehension comes in my mind that someone attacks me, तो कोई मुझ पे अटैक करने वाला है, ये अप्रीहेंशन मुझे लगा कि मुझ पे अटैक किया उसने, वहां से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो गया। और जब तक वो अप्रीहेंशन कंटिन्यू है, जब तक वो अटैक का खतरा मुझ पर है, जब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा। अटैक हुआ वहां से, जब तक उसका इफेक्ट बाकी है वहां तक, जब तक खतरा टलता नहीं, तब तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है पर्सन। अभी देखिए, मध्य प्रदेश जुडिशियल एग्जामिनेशन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 102 पे, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी commences as soon as reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense and it continues even after that apprehension ceases। ये पहला ऑप्शन था। commences only when the assault is actually done and continues during the period of assault। second, commences only when the assault is actually done and continues even। and fourth one is commences as soon as a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense and it continues as long as such apprehension of the danger of the body continues। जब तक वो कंटिन्यू रहेगा। तो हम देखें तो सेक्शन 102 ये क्लियरली मेंशन करता है, अटैक हुआ वहां से, तो अटैक का इंप्रेशन एप्रीहेंशन जब तक रहा, तब तक वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकता है पर्सन। सो ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट वन। सो ऑप्शन 4 यहां पर करेक्ट है। सो दीज आर द सिचुएशन इन विच पर्सन कैन एक्सरसाइज अ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द बॉडी। बॉडी के अगेंस्ट में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैसा यूज कर सकता है, डेथ कब कॉज कर सकता है और डेथ कब कॉज नहीं कर सकता है, हमने आज लेक्चर में डिस्कस किया। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।